So right now we'll be doing the answer principle of parallel access theorem. We'll be stating the theorem and we'll be also doing the mathematical proof of the theorem. Okay. Now first things first, let us consider a random object of a rigid object of any random shape. Okay. So let us assume this is the rigid object of any random shape. Okay. And the center of gravity of this object, let it be over here, and the name of the center of gravity is what it is given by C. Okay. The axis of rotation passing through C will be this. This is the axis of rotation passing through C. Let us assume that it is rotating with the angular velocity omega, and the moment of inertia about the axis passing through C will be how much? It will be equal to IC. The moment of inertia about an axis passing through C will be what? It will be IC. Okay. Now we know the value for IC. What we have been told is to find the value for moment of inertia about any other axis passing through any other point. Let us assume there is another point by the given name O. Okay. And the moment of inertia about the axis passing through O, let it be how much? Let it be IO. Okay. And it is rotating like this. Okay. So we have to find the value for IO. The distance between two given axes is how much? It is equal to h. The distance between the two given axes is equal to h. Okay. So I can say that parallel axis theorem says, parallel axis theorem, पहले theorem क्या है वो देख लेते हैं. Parallel axis theorem says that the value for IO is equal to how much? IO is equal to IC plus MH square. This is the formula for parallel axis theorem. Now let us convert this particular equation into normal English words, so we will also get our statement. We will say what? The moment of inertia about any axis of a rigid object will be equal to the summation of moment of inertia about an axis passing through the center of gravity and parallel to our axis. These two axes, about they are parallel to each other, and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two axes. Okay. So the statement of parallel axis theorem is nothing but just the English translation of the mathematical equation IO is equal to IC plus MH square. Okay, fine. अब theorem समझ में आ गया, diagram समझ में आ गया. Let us go to the proof of this particular theorem. Okay. अब proof में हम लोग क्या करेंगे? We will say, let me make the diagram a little bit clearly, so that you will be able to understand. Okay. Just one sec. तो ये diagram अगर मैं वापस बनाऊंगा, ये देखो. Something, it will make something like this. Okay. ये हो गया मेरा point O, and the axis is given by IO. ठीक है. ये हो गया क्या मेरा point C, center of gravity, और ये क्या हो गया? ये हो गया IC. ये क्या हो गया? ये हो गया IC. अब यहाँ पर मैं क्या अज्यूम करूँगा? मैं ये अज्यूम करूँगा कि ये रैंडम ऑब्जेक्ट में मेरे पास एक रैंडम पॉइंट है. लेट दैट पॉइंट बी हाउ मच? लेट दैट पॉइंट बी D. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाउ मच? इट इज गिवन बाई CD. देखो ऐसा. ठीक है. ऐसा. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D फ्रॉम द पॉइंट O, हमारा जो एक्सिस है वो उससे कितना रहेगा? उससे रहेगा OD. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये देखो ऐसा ज्वाइन करो तो ऐसा बन जाएगा. अगर मैं OC को ज्वाइन करूँ तो मुझे ऐसा H मिल जाएगा. ठीक है. एंड नाउ आई एम एक्सटेंडिंग OC इन सच अ मैनर कि मैं D से जब परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करूँगा तो यहाँ पर आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो आई एम एक्सटेंडिंग OC इन सच अ मैनर दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम D मीट्स एट दिस पॉइंट. लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? लेट दिस पॉइंट बी N. ये क्या हो गया? ये हो गया DN. समझ में? ठीक है. सो हमारा डायग्राम अभी हो गया तैयार. अब इसी डायग्राम को इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करेंगे हमारा ये फार्मूला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला. ठीक है. अब एक चीज़ याद रखो, समेशन का मैथमेटिकली एक और नाम भी होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन. देखो मैथमेटिकली समेशन एंड इंटीग्रेशन इज वन एंड द सेम थिंग. हम लोग स्टैटिस्टिक्स में हम लोग समेशन बोलते हैं और कैलकुलस में हम लोग क्या बोलते हैं? कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, बट दोनों का मतलब एक ही चीज़ है. ठीक है. तो अगर मैं ये बोलूँ कि I इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR स्क्वायर, तो बेसिकली इसका मतलब क्या रहेगा? बेसिकली इसका मतलब रहेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ MR स्क्वायर, बिकॉज समेशन इंटीग्रेशन दोनों का मतलब सेम है.
ठीक है। अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है यहाँ पर, इस पॉइंट डी पे जो टाइनी पार्टिकल है, उस टाइनी पार्टिकल का मास कितना है, उसका मास है डी एम। उसका मास कितना है, उसका मास है डी एम। ठीक है। नाउ लेट अस से दैट आई सी कितना रहेगा, आई सी मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सी, ठीक है, इज इक्वल टू आई सी पता है, पहले क्या अपन लिखेंगे, इंटीग्रेशन एम आर स्क्वायर। एम कितना है, एम है पॉइंट डी का मास कितना है, पॉइंट डी का मास है डी एम, और आर स्क्वायर पॉइंट डी का डिस्टेंस कितना है सी से, पॉइंट डी का डिस्टेंस फ्रॉम सी इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू सी डी, इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, वो क्या बन गया, आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम सी डी स्क्वायर। अगर मैं उसको वापस लिखूंगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डॉट डी एम। ठीक है, समझ में। इन द वेरी सेम मैनर मैं क्या बोलूँगा, आई ओ इज इक्वल टू हाउ मच, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ओ से डी का डिस्टेंस कितना है, वो है ओ डी स्क्वायर डॉट डी एम, समझे। तो मेरे पास आई सी का फॉर्मूला है, आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डॉट डी एम, और आई ओ है, आई ओ कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ ओ डी स्क्वायर डॉट डी एम। ठीक है, फाइन, समझ में। अब इसको अपन थोड़ा मैथमेटिकली आगे लेके आते हैं। ठीक है, लेट अस से आई ओ इज इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेशन ऑफ ओ डी स्क्वायर डॉट डी एम। ठीक है, अब वापस जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ओ डी स्क्वायर, अब दिखा ओ डी किधर है, ओ डी देखो ये रहा, ओ डी ये रहा। ठीक है, अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि लुक एट द डायग्राम ऑफ ट्राइंगल ओ डी एन, ठीक है, लुक एट द डायग्राम ऑफ ट्राइंगल ओ डी एन, तो इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन द राइट एंगल ट्राइंगल आई कैन अप्लाई व्हाट, आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ओ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, ओ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओ डी स्क्वायर के बदले में क्या लिखूँगा, दिस इज इक्वल टू क्या था, ओ सी ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। ठीक है, ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर डॉट डी एम। ये कहाँ से आया, ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, आई होप तुम लोग का भी क्लियर है। देखो ओ एन स्क्वायर डी एन स्क्वायर। ठीक है, अब ओ एन क्या है, ओ एन है ओ सी प्लस सी एन, है ना। देखा ओ एन टोटल कितना है, ओ सी प्लस सी एन। ठीक है, ओ एन कितना है, ओ एन इज ओ सी प्लस सी एन। तो यहाँ पे ओ एन के बदले में क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी प्लस सी एन द होल स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर डॉट डी एम। ठीक है, अब हम लोग ओ सी प्लस सी एन द होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट को हम लोग एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड कौन सा करेंगे, वही अपना पुराना एकदम फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ओ सी इंटू सी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर डॉट डी एम। ठीक है, अब लुक एट द लास्ट टू टर्म्स, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ये तो टर्म को देखो, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। चाहते वापस डायग्राम पे, सी एन स्क्वायर है ये, डी एन स्क्वायर है ये। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, है ना। ये हाइपोटेनस मिल गया मेरे को, तो ये क्या, ये सी डी स्क्वायर। तो हैंस इन दोनों के बदले में क्या लिखूंगा, इन दोनों के बदले में लिख दूंगा सी डी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी डॉट सी एन प्लस सी डी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा डी एम से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ओपन द ब्रैकेट एंड डी एम हर एक टर्म पे लिखो, ओपन द ब्रैकेट और डी एम हर एक टर्म पे लिखो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वायर डॉट डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू ओ सी सी एन डॉट डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डॉट डी एम। ठीक है, अब यहाँ पर अपना आंसर ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब देखो पहला पार्ट ओ सी स्क्वायर डॉट डी एम, ठीक है, ओ सी स्क्वायर डॉट डी एम, ओ सी स्क्वायर डॉट डी एम हमने ऊपर देख चुके हैं। ओ सी स्क्वायर डॉट डी एम कितना होता है, ओ सी स्क्वायर डॉट डी एम होता है, ये देखो ओ सी, अच्छा ओ सी इज हाउ मच, ओ सी इज बेसिकली एच। ठीक है, ओ सी इज बेसिकली एच, तो वो मैं बाहर लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू ओ सी इज एच, तो एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू ओ सी सी एन डॉट डी एम प्लस क्या बचा, सी डी स्क्वायर डॉट डी एम। लास्ट में क्या बचा, सी डी स्क्वायर डॉट डी एम। सी डी स्क्वायर डॉट डी एम वापस आते हैं हम लोग डायग्राम पे,
सी डी स्क्वायर डॉट डी एम क्या है, ये देखो दिखा यहाँ पर आई सी है, सी डी स्क्वायर डॉट डी एम क्या है, वो है आई सी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके बदले में डाल देंगे द वैल्यू फॉर आई सी। ओके, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं, मतलब पकड़ लो 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स इज एक्स। वेरी वेरी सेम मैनर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एम कितना होगा, 1 डॉट डी एम विल बी एम। ठीक है, ये जो बीच का टर्म है ना, इसका टोटल मैथमेटिकल वैल्यू 0 आएगा। अब देखो ज़्यादा डीप में मत जाओ, तुमको एक शॉर्टकट में एकदम बेसिक करके बताता हूँ मैं। इस बेसिक टर्म का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास के बाहर कितना मास है, सेंटर ऑफ मास के बाहर कुछ मास होता है नहीं। आई अज्यूम दैट द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी इनसाइड द सेंटर ऑफ मास। सो बाहर क्या है, मास बाहर है 0, तो प्लस 0 प्लस ये क्या है आई सी, आई सी। तो मैं क्या लिखूंगा, आई सी को लिखूंगा पहले, और ये एच स्क्वायर एम को मैं क्या लिख दूंगा, एम एच स्क्वायर। Hence, I can say that IO is equal to IC plus MH square. So we have done the derivation for parallel axis theorem. ठीक है, समझ में? It's a very important answer. या तो parallel axis theorem या तो perpendicular axis theorem, दोनों में से कोई भी एक आंसर बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।